If you want to go any destination, if you have a two path, then in networking we are calling as a redundant path, redundancy path. Okay. So, but problem is that in redundancy path is in layer 2 network, once traffic, okay, अगर ट्रैफिक यहाँ से जाके यहाँ से आके फिर से यहीं से घूम के चला गया, राइट? अगर ऐसे घूम रहा है हमारा ट्रैफिक, तो क्या हो रहा है? एक लूप क्रिएट हो रहा है, राइट? अगर नेटवर्क में लूप क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर नेटवर्क एक्चुअली. ओके. So loop, to avoid the loop, we are using spanning tree protocol. So what is going to do for the traffic? It will block this port. So whatever traffic is going here, if he's trying to come back in this port, so what it will do? It will block that those traffic. Okay. इसीलिए कहते हैं कि लेयर टू में लूप नहीं होना चाहिए आपका. तो लूप नहीं होना चाहिए तो एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. वही हम लोग लर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमने Basically, it's a one-way route. एक्चुअली टू वे रूट, बट वी आर गोइंग टू ब्लॉक वन वे. ओके. वी आर गोइंग टू ब्लॉक वन वे विच इज Okay. अवॉइडिंग द लूप ऑन द नेटवर्k basically. Means two way you have, this way also you can go, this way also you can go. What else if traffic will come this way? It receive on this interface, it will never forward back, but it will send to this interface, right? And now this also receive, this will send like that. In real network it's happening Okay. huge in that case. So lot of traffic will come. So this traffic, lot of traffic will come like that. It will create a broadcast storm. We are calling as a broadcast storm. So broadcast storm is never good for the network. कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो हम लोग इसको अवॉइड करने के लिए लेयर टू प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी प्रोटोकॉल. तो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो एसटीपी प्रोटोकॉल होता क्या है, आपको इंटरव्यू में क्या बताना है वो मैं लिख दे रहा हूँ. सो इट इज, एसटीपी स्टैंड फॉर Spanning स्पैनिंग, tree protocol. या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल which is going to and protocol and its layer 2 protocol which is going to avoid layer 2 loop on the network. You got it right? Clear? Yeah. जफर भाई, आप एक्नॉलेज करना है, ठीक है? दिख ओके रहा है ओके। ना? हाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा है बता देना. Okay. So there are three activity, you can say activity will, three activity or process, you can say three process to form the STP. Means there are three process to form the STP. How exactly STP will converge their topology, how it will block the traffic and all those things. They are having three method process. Not method, it's a process. Okay. So पहला process क्या होता है? Once switches will come up, once switches will come up, okay, they will exchange BPDU, hello BPDU each other, hello BPDU to each other, each other, and
find the root switch. Okay. Find the root switch. Find the root switch on the Okay. basis of root on the basis of root bridge ID. Root bridge ID means, I will explain what is bridge ID and all those things. So if, for example, what is mean by this line? If we have multiple switches, right? In the network we have connected, right? So once they will turn on, right? For example, this is turn on, this is turn on. Okay. If one by one also will turn on, then in that case, they will send BPDU to each other. Hello BPDU. This one also will send, this one also will send, each other they will send. Okay. Once they will send to each other on the basis of root bridge ID, each and every device having on bridge ID. On bridge ID. Okay. So on the basis of bridge ID, they will identify which will become a root switch. For example, a root switch. Okay. I will clear more on this. Don't worry. This is what switches are doing. Go on next step. Once switches will find the root switch, right? Hello BPD to each other to find the root switch on the basis of root bridge ID. Okay. Now root bridge ID, root ID consists of 2 bytes of priority and 6 bytes of MAC address. Lower root bridge ID, lower root bridge ID will become root switch. Become root switch. Okay. Now it's happening like here. 2 bytes of priority and 6 byte of MAC address. 6 bytes of MAC address. Okay, this is known as root bridge DGID. So default bridge ID, default priority. Okay, bridge ID, and you can say in below line by default root ID is, oh sorry, by default priority is 32,768. 768. Now, second process. So I have shown you, right, how they are going to identify the root switch, root bridge. Second, all the non-root. In network, only one switch will become a root switch, and all other switches will be as a non-root switches, right? So all the non-root switches
will find the root port. Non-root switches will find the root port. Root port RP means root port means RP means root port only. Uh, Root port RP is shortest path to reach to root bridge. Okay. Yesterday I explained all those things to that guy. Okay. Means RP is the shortest path to reach. How it is the shortest and how it's identifying, those we will discuss in moment. Okay. So third thing, all the switches will find the DP port means designated port. Designated port for each LAN segment. In root switch, all the port will be DP port. Okay. If any switch will become a root switch, for that switch, all the port will be DP port. So let me explain. These are. So क्या होता है, एक यहाँ हो गया था हमारा, फॉर एग्जांपल रूट हो गया था इलेक्ट, राइट? रूट इलेक्ट हो गया था, राइट? ये दोनों नॉन रूट स्विचेस थे जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर, ये शॉर्टेस्ट होगा तो इसको आरपी बना लेंगे, ये शॉर्टेस्ट होगा तो इसको आरपी बना लेंगे। ठीक है, डन। तो पहले क्या हो रहा था, यहाँ से ट्रैफिक जा रहा था, यहाँ से जाके फिर से रिपीट हो रहा था। रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? यहाँ से कोई भी ट्रैफिक भेज रहा है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर है और ये ट्रैफिक इसको कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो हमारे पास दो वे हैं, राइट? एक यहाँ से डायरेक्ट जा सकता है, एक यहाँ से घूम के फिर डायरेक्ट आ सकता है, तो लूप हो रहा है काइंड ऑफ। ठीक है, इस लूप को अवॉइड कैसे कर रहे हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो जो भी शॉर्टेस्ट हो गया उसको रूट पोर्ट बना लेगा, यहाँ भी रूट पोर्ट बना लो, इसको भी। इसका हमने पढ़ा है कि डीपी पोर्ट। सो डीपी पोर्ट जो रूट स्विच होता है उसका सारे पोर्ट डीपी डीपी होते हैं। ओके, जितने भी पोर्ट होंगे सारे डीपी होंगे। और डीपी एक साथ नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल इधर भी डीपी नहीं हो सकता। एक साइड आरपी होगा, एक साइड डीपी होगा, एक साइड ब्लॉकिंग होगा, एक साइड डीपी होगा, लाइक दैट। तो अब इन दोनों स्विचेज में आल्सो, ये भी एक लैन सेगमेंट है, ये भी एक लैन सेगमेंट है, ये भी लैन सेगमेंट है। इसके लिए डीपी तो आइडेंटिफाई हो गया, फिर इसके लिए भी डीपी आइडेंटिफाई होगा इसके लिए। ठीक है, और एक पोर्ट क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा लूप जो यहाँ से ट्रैफिक जाके फिर से वापस आ रहा था, ये नहीं आने देगा। मीन्स अभी ये टोपोलॉजी हमारा लूप फ्री हो गया। क्या बोलते हैं, लूप फ्री। तो अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कौन सा डीपी होगा, कौन सा आरपी होगा। आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, तो आप लोग बताओगे कि कैसे ये इलेक्ट हुआ एक्चुअली। तो आप लोगों को उतना समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो ठीक है, ये हट गया। तीन प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब बीपीडीयू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ। क्लियर है ना? चलो, दूसरा टॉपिक है सेम, ये एक चलेगा बहुत सेकंड दिन तक। प्लीज। व्हाट इज बीपीडीयू? ठीक है, सो देयर आर टू टाइप of BPDU. Okay. It is stand for Bridge Protocol Data Unit. There are data unit.
There are two type of BPDU. First, configuration BPDU, and second is TCN BPDU. कन्फिगरेशन बीपीडीओ को हेलो बीपीडीओ देते हैं हम लोग। और टीसीएन का फुल फॉर्म होता है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मीन्स क्या होता है टोपोलॉजी ये बीपीडीओ कब जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारे पास सारे स्विच कनेक्टेड थे, राइट। यहाँ यहाँ यहाँ। तो सारे क्या होते हैं, जैसे ही अन ऑन होंगे, पावर ऑन होंगे, सब एक दूसरे से बीपीडीयू भेजेंगे। ठीक है। एक दूसरे से सब भेजेंगे। तो सब अपने आप को क्या समझेंगे, पहली बार रूट स्विच समझेंगे। जब लोवेस्ट रूट ब्रिज आईडी वाला ये रिसीव करेगा, फॉर एग्जांपल इसका लोवेस्ट है, इसका लोवेस्ट है, तो जैसे इसको रिसीव करेगा तो अपने आप को क्लेम करना बंद कर देगा। फॉर एग्जांपल इलेक्शन में सभी खड़े होते हैं, शुरुआत में सभी जीत रहे होते हैं कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है तो क्या होता है कि सब अपने आप को क्लेम करना बंद कर सकते हैं, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं मैं हार गया। तो ऐसे यहाँ भी होता है। सब अपने आप में पहले एक दूसरे को बोलेंगे हम रूट हैं, हम रूट हैं। जैसे लोएस्ट वाला आ जाएगा, रूट ब्रिज आईडी वाला, ये लोग बंद कर देंगे अपने आप को क्लेम करना कि मैं रूट हूँ। तो रूट इलेक्ट हो गया, राइट। अब क्या होगा, और आरपीडीपी सब इलेक्ट हो गए हैं, सारा स्टेपी तो एसटीपी चल गया है। नाउ अब क्या होगा कि कोई भी चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये वाला इंटरफेस डाउन हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। कोई भी अगर इंटरफेस डाउन होता है, डिवाइस डाउन होता है, कुछ भी चेंजेस होता है नेटवर्क में, तो उसको ये डिवाइसेस सिर्फ नॉन रूट स्विचेस को भेजता है। ये वाले सिर्फ नॉन रूट स्विचेस भेजेंगे, नॉन रूट जो रहेंगे वही भेजेंगे। ठीक है। तो जैसे भी चेंजेस आकर होंगे, कोई भी चेंजेस इसको दिखेगा, तो सेम टाइम अपने रूट ब्रिज को इन्फॉर्म करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब की। तो कोई भी चेंजेस जब आकर होगा तो टीसीएन बीपीडीयू जाता है। तो बीपीडीयू का पूरा, बीपीडीयू के अंदर क्या क्या जाते हैं उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं उसको इंटरनेट से कॉपी करके मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोग लिख लेना बाद में। बट ये डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ओके। कोई एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये वाला है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। एक मिनट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गया हेलो बीपीडीओ का। दूसरा वो इन्फॉर्मेशन जो टीसीएन में जाता है उसकी बात कर लेते हैं। ये इंटरव्यू में जल्दी पूछता नहीं है, तो इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जब और बहुत सारे टर्म आएंगे तो मैं उसमें समझा दूंगा कि क्या होता है। ठीक है। ठीक है, ये टीसीएन वाला है। टीसीएन वाला होता है, ये हेलो वाला होता है। ठीक है। इसको लिख लेना जब भी आपके पास टाइम हो, तो इसको लिख लेना। ठीक है। चलो, टीसीएन वाले में क्या जाता है, एक मिनट, कहीं लिखा है क्या। कहीं लिखा हो तो मैं देखता हूँ, एक मिनट रुको, कहीं लिखा होगा तो मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ। नहीं तो इंटरनेट पे भरोसा नहीं है।
कुछ भी देते हैं। पता नहीं कहाँ, कहीं तो लिखा होगा मैंने। प्रोटोकॉल फील्ड, प्रोटोकॉल वर्जन, हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई फाइंड एंड रिकन्फर्म एज वेल। ओके। तो अब एक्चुअल में एसटीपी कैसे काम करता है उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। ठीक है। ये तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ये इन्फॉर्मेशन इतनी होती है। ठीक है। अब कैसे एक्चुअली में काम करता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। तो ओके, ग्रेट, ये तो अच्छा है। ये हमारे तीन स्विचेज हैं फॉर एग्जांपल। इसको ध्यान से समझना, नहीं तो फिर एसटीपी का बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। सभी लोग हैं कॉल पे? ठीक है। Yes, Yes. I am. यहाँ तक समझ में आया कि नहीं कि एसटीपी क्यों यूज करते हैं? एक पोर्ट ब्लॉकिंग होता है और आरपी होता है, डीपी होता है, ये सब समझ में आ गया ना? Yes, yes. चलो कोई नहीं, अभी बहुत क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जिसका भी लोएस्ट रहेगा ब्रिज आईडी, वो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये रूट है, समझाने के लिए। तो जब भी ये कोई, एक चीज और समझ लो, इससे पहले मैं इसको समझाऊं, एक चीज और समझ लो। व्हाट इज कॉस्ट इन एसटीपी? कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है कि हर एक फिजिकल इंटरफेस का, फॉर एग्जांपल आप इथरनेट यूज कर रहे हो, इथरनेट का 10 Mbps स्पीड यूज कर रहे हो, तो इसका कॉस्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट कॉस्ट होता है 100। दूसरा, अगर फास्ट इथरनेट है मींस 100 Mbps का स्पीड है, तो उसका कॉस्ट होता है 19। देन अगर 1 गिग का है, 1 गिग इथरनेट है, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। और आपके पास अगर 10 गिग का है इथरनेट है, तो उसका कॉस्ट हो जाता है 2। ये हमारा बाय डिफॉल्ट कॉस्ट है, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी रूट पोर्ट कोई भी बीपीडीयू जनरेट करता है, मींस अगर ये स्विच कोई भी बीपीडीयू जनरेट करेगा, ये कॉस्ट कैसे जनरेट करता है? जीरो कॉस्ट से। ठीक है। इसका जो कॉस्ट होता है, जीरो से जनरेट करेगा कोई भी पैकेट, कोई भी बीपीडीयू। ठीक है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल एक चीज और देख लो तुम लोग, यहाँ पर दो स्विच हैं, राइट? एक जगह गिग कनेक्ट कर दिए, गिग इसका 4 होता है, एक साइड फास्ट इथरनेट कर दिए, फास्ट उसका 19 होता है। तो जो लोएस्ट रहेगा वो नेगोशिएट कर लेगा, 19 कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। ये जनरेट करता है जीरो कॉस्ट बीपीडीयू। ठीक है। 10 मिनट में इसको समझ लेंगे। जब ये पैकेट कोई भी सेंड करेगा यहाँ से, और ये डिवाइस रिसीव करेगा, ठीक है, तो पहले सेंड क्या करेगा? वो बेसिक पैरामीटर हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या क्या सेंड करता है। तो पहले अपनी आईडी जनरेट करेगा, रूट ब्रिज आईडी। ठीक है। रूट ब्रिज आईडी, इसका क्या है? जो भी मैक एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल इसका मैक एड्रेस 0A है, तो 32 7 68
जो इसका मैक एड्रेस, आई मीन जो बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी था, प्लस 0A मैक एड्रेस। ठीक है, एक चीज क्लियर है। दूसरा चीज जनरेट करेगा कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट क्या रहेगी? जीरो रहेगी, क्योंकि ये जनरेट ही जीरो कॉस्ट से करता है। डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी मींस ये रूट है जो जनरेट कर रहा है। डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी मींस हु इज जनरेटिंग दिस पैकेट काइंड ऑफ। तो ये हमारे केस में सेम रहेगा। ठीक है, हु इज जनरेटिंग दिस पैकेट, यू विल, इट विल बी मोर क्लियर, डोंट वरी। देन डिजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, डिजिग्नेटेड पोर्ट आईडी किस पोर्ट से ही जनरेट कर रहा है? FA0/1 से, यहाँ पर 0/1 मान लो, 0/2 मान लो, यहाँ पर 0/1 मान लो। तो इसका फॉर्म, ये इसका जो जब वैल्यू लिखता है ना, 128 से लिखता है, 128.1। ये होता है डिजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। जहां से एग्जिट होगा उसका पोर्ट नंबर क्या रहेगा, वो जनरेट कर, वो मीन्स है उसका डिजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। रूट ब्रिज आईडी यहाँ पर, अब देखो, जब यहाँ पर पैकेट पहुंचेगा तो ये भी अपने आप को सामने वाले को भेजेगा, राइट, इसको भेजेगा। जब ये इसको भेजेगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे उसकी बात करते हैं। ये हो गया रूट का, ये हो गया रूट का। अब हम बात करते हैं ये स्विच 1 का, फॉर एग्जांपल। ये है स्विच 2 का। जब स्विच 2 भेजेगा, स्विच 2 कैसे भेजता है? ठीक है, ये जब भी भेजेगा अपना, तो रूट ब्रिज आईडी हमेशा सेम रहेगा। रूट क्या रहेगा? जो रूट ब्रिज एक ही रहता है नेटवर्क में, वो हमेशा सेम रहेगा। तो 32 7 68 प्लस 0 है, ये हमारा रूट का हो गया। फिर अब डिजिग्नेट कॉस्ट क्या हो जाती है? कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट ऐड हो जाएगी। कितनी है? 19। तो यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी 19। फॉर एग्जांपल मैं फास्ट इथरनेट यूज कर रहा हूँ, FA, जिसका स्पीड क्या है, 100 Mbps, उसका कॉस्ट बाई डिफॉल्ट क्या होता है? 19। ठीक है, अब डिजिग्नेटेड क्या हो जाएगा? डिजिग्नेटेड, डिजिग्नेटेड पोर्ट आईडी क्या हो जाएगी? ओ सॉरी, डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी लिखने में थोड़ा सा नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान देना, ये डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी लिखा है। अब इस स्विच का जो है, जो जनरेट कर रहा है, उसका ब्रिज आईडी, इसका फॉर एग्जांपल 32 7 68, इसका मैक एड्रेस क्या है? 0B प्लस 0B। ठीक है, और फिर डिजिग्नेटेड पोर्ट आईडी जिससे एग्जिट कर रहा है, उसका क्या हो जाएगा? 128.2। 128 बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसको भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब स्विच 3 किसी को भेजना नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे चलता है। अब कौन सा रूट पुट होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ये समझ में आ गया ना कैसे एक्चुअली में फ्लो होता है? ठीक है, चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? इज देयर एनी क्वेश्चन? No. ग्रेट, फाइन। एनीवन? ऑल इज गुड? No. ओके, जेफर as well, no, great, fine. Okay, good. If you are understanding, it's very good. It's taking some time to understand this, how it's flowing. Anyway, I will explain multiple time, don't worry. I will take all the scenario, so you will be very clear in each things. So never interviewer asking what are the type question, I will explain that one as well in next one. Let me stop the recording and sorry.